Namaste. Namaste. Thailand, the country of happy people. Thailand, the country of white elephant. It is also known for its tropical beaches, opulent royal palaces, and marvelous Buddha temples. Thailand is a very friendly country. You may have heard from me a lot of times in my past Thailand videos that the people of Thailand are very good and kind-hearted. Their behavior was very friendly, and most of all, they are very serious about their tourists. It is also a dream foreign destination for middle-class Indian tourists. And like that also, visiting Thailand is also our first foreign trip. It was a mixed feeling. At one hand, we were very excited because first time we will travel outside our country. And on the other hand, we were very nervous and tensed about all the processes involved to visit a different country. But when we reached the airport, to our surprise, we found that it was a very easy process. And we had a very smooth immigration. Our visa done within an hour. It was our 10 days holiday, of which we stayed 8 days at Thailand. We planned it fully by our own. We made some plan perfect, but in some cases we made some mistake. Today I will share our 8-day tour plan in detail with you. I will share those small things also which if we include could have made our plan much better. In many things like choosing the homestay, exchanging the money, and a lot of other sectors. And I will share some more thing which you could include with your plan with this tour plan. And what you should keep in your mind while choosing the homestay or choosing the travel transport. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjay. Let's begin. For this trip, we took our flight from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata for Bangkok. Yes, we start our tour from Bangkok, but you can also start it from Phuket. हम लोग फुकेट में और भी टूरिस्ट से मिले थे जो लोग इंडिया से डायरेक्ट फुकेट आए थे और फुकेट से ही अपना टूर स्टार्ट किए थे. Our flight starts at 12:30 AM at night as per Indian time from Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. As per Indian time, and we reached Don Mueang International Airport of Bangkok at 3 AM at night as per Indian time and 4:30 AM as per the Thailand time. After we reached Bangkok, first we did our visa on arrival, which was a very smooth process. Then we went through a very easy and smooth immigration process. After that we collect our luggage. Please note that you can only collect your luggage after the visa and immigration process. After collecting our luggage, we bought a SIM card from airport. We bought it from airport, but as I told you that it was our first experience, so we didn't know the other options available. But I think the best process is to book a eSIM card. और आप आपके एग्जिस्टिंग सिम कार्ड में भी इंटरनेशनल रोमिंग पैकेज डाल के ले जा सकते हो. ये भी बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है. आप एयरपोर्ट के बाहर किसी लोकल शॉप से भी सिम कार्ड ले सकते हो. उससे आपको सिम कार्ड थोड़ा सस्ता मिलेगा. हम लोग सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही ले लिए थे क्योंकि हम लोगों को कैब बुक करना था. और कैब बुक करने के लिए आपको चाहिए एक लोकल सिम कार्ड, थाईलैंड लोकल सिम कार्ड. हम लोग एयरपोर्ट में ही ग्रैब ऐप डाउनलोड करके उससे हमारा कैब बुक कर लिए. एंड वी गॉट द कैब एट एयरपोर्ट विद इन अ मिनट एंड रीच्ड आवर होम स्टे व्हिच वाज नियर द डॉन मुएंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हम लोग एयरपोर्ट के पास हमारा होम स्टे चूज किए थे. यहाँ पे सिटी भी बहुत डेवलप था, पर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अवेलेबल नहीं था.
आप लोगों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, आप वही जगह पे होम स्टे या होटल बुक कीजिए जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल मिल जाए। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल कर सकते हो तो आपका बहुत सारा पैसा वहीं पे ही सेव हो जाएगा। जैसे हम लोगों को अपना होम स्टे से ग्रैंड पैलेस के एरिया में जाने के लिए पड़ता था 500 बात, इंडियन करेंसी में लगभग 1200 रुपए, which was huge because every day we need to go and come back. That is 1000 baht every day. लगभग 2500 रुपए every day for the transport only. हम लोग पूरे रात जर्नी करके आए थे, इसी वजह से हम लोग तुरंत सो गए और 4 घंटा सोने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े ग्रैंड पैलेस देखने के लिए। हम लोग बैंकॉक में सिर्फ 2 ही दिन रखे थे, पर मैं सजेस्ट करूंगी 2 दिन बैंकॉक के लिए काफी नहीं है। बैंकॉक के सारे जगह घूम के आने के लिए 2 दिन काफी नहीं है और हम लोग सिर्फ 2 दिन रखे थे, इस वजह से हमारा टूर बहुत हेक्टिक भी हो गया था। मेरे हिसाब से मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन रखना चाहिए बैंकॉक के लिए, और अगर आप मार्केट सारा घूमना चाहते हो तो और 1 दिन। एवरेज मैं बोलूंगी 4 दिन चाहिए बैंकॉक के सारे जगह को घूमने के लिए। हम लोग बैंकॉक के टाइम के हिसाब से 4:30 बजे लैंड किए थे। उसके बाद वीजा और इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में लगभग और 1 से 1.5 घंटा लगा। 6 बजे के करीब हम लोग एयरपोर्ट से निकले और 7 बजे के अंदर रूम पे यानी कि हमारे होम स्टे में हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग 4 घंटा सो गए थे और 11 बजे उठ के फ्रेश होके 12 बजे के अंदर निकल गए थे बैंकॉक घूमने के लिए। हम लोग ग्रैब ऐप से एक कैब बुक किए और कैब से पहुंच गए ग्रैंड पैलेस देखने के लिए। हमारे होम स्टे से ग्रैंड पैलेस तक कैब में हम लोग को 500 बात लगा। हम लोगों को ग्रैंड पैलेस पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया था, इसी वजह से हम लोग तुरंत ग्रैंड पैलेस देखने के लिए चले गए। ग्रैंड पैलेस देख के निकलने के बाद हम लोग एक लोकल रेस्टोरेंट में हमारा लंच किए, फिर हम लोग वट फो देखे। ग्रैंड पैलेस के अंदर आपको एक एमरल्ड बुद्धा का मंदिर मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत है, और वट फो था रिक्लाइनिंग बुद्धा मंदिर। दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग एक टुक टुक बुक करके चले गए चाइना टाउन नाइट मार्केट देखने के लिए। बैंकॉक का मेन अट्रैक्शन है ये नाइट मार्केट, और सिर्फ बैंकॉक का नहीं पूरे थाईलैंड का मेन अट्रैक्शन है ये नाइट मार्केट। उस दिन हम लोग चाइना टाउन नाइट मार्केट में अच्छे से टाइम स्पेंड किए और बहुत सारा नया नया थाईलैंड डिशेस टेस्ट किए। बैंकॉक के नाइट मार्केट हमारे लिए एक सच में नया एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट दिन हम लोग हमारे होम स्टे के सामने से फिर से कैब बुक किए, बट इस बार हम लोग यूज किए बोल्ट ऐप। फिर से पहुंचे वही ग्रैंड पैलेस के ऑपोजिट में, और वहां से फेरी बुक करके चाओ फ्राया रिवर क्रॉस करके हम लोग गए वट अरुण। वट अरुण नाम से ही पता चलता है ये सूर्य देव का मंदिर है। वट अरुण देखने के बाद फिर से हम लोग एक लोकल थाई रेस्टोरेंट में हमारा लंच कंप्लीट किए। उसके बाद एक टुक टुक बुक करके हम लोग चले गए तलिंगशंग फ्लोटिंग मार्केट। बैंकॉक की ये फ्लोटिंग मार्केट्स भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है। आप अगर बैंकॉक घूमने जाते हो तो आपको ये फ्लोटिंग मार्केट्स घूम के देखना ही चाहिए। फ्लोटिंग मार्केट में आपको बहुत सारा सामान बहुत सस्ते में मिलेगा। फ्लोटिंग मार्केट में आप बोटिंग भी कर सकते हो, पर हम लोग जब फ्लोटिंग मार्केट पहुंचे थे तब फ्लोटिंग मार्केट एकदम एंड कंडीशन में था, मतलब वो मार्केट खत्म हो रहा था, इसी वजह से हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए। पर हम लोगों का लेट से फ्लोटिंग मार्केट पहुंचना हमारे लिए एक आशीर्वाद भी साबित हुआ। हम लोग वहां से एक बोट करके सीधा आ गए ग्रैंड पैलेस, और फ्लोटिंग मार्केट से बोट करके ग्रैंड पैलेस तक आने का जर्नी था ऑसम, मेमोरेबल।
उस दिन हम लोग अपने आंखों से देखे कि कैसे चाओ फ्राया रिवर के जो पानी है उसको गेट से बंद करके फ्लोटिंग मार्केट के लिए ये पानी का कैनल क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हम लोग ग्रैंड पैलेस के सामने पहुंच के कैब लेके चले गए थे मार्बल टेम्पल। ये मंदिर भी काफी खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग उस दिन फिर से चाइना टाउन नाइट मार्केट में गए थे। उस दिन चाइना टाउन नाइट मार्केट से वापस आने के बाद हम लोग हमारा होम स्टे के सामने के एरिया में थोड़ा सा टहलने निकले। वहाँ पे हम लोगों को एक मेला मिला था। बेसिकली वो भी एक नाइट मार्केट ही था। बैंकॉक में ऐसे नाइट मार्केट आपको बहुत सारी जगह में मिल जाएगा। इसी वजह से आप अगर बैंकॉक में बहुत सुबह निकल ना भी पाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात में आपको यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट डे हम लोग बहुत सुबह बस से निकल गए पटाया के लिए, और पटाया पहुंचने से पहले ही हम लोग एक जगह पे रुके जिसका नाम था नोंगचू विलेज और नोंगनॉच विलेज। ये एक ट्रॉपिकल गार्डन था, एक ह्यूमन मेड गार्डन। ये जगह सच में बहुत अमेजिंग था। मुझे पर्सनली इस नोंगनॉच ट्रॉपिकल गार्डन बहुत अच्छा लगा था। इसके अंदर आपको एलिफेंट शो भी देखने को मिलेगा। और उस दिन नोंगनॉच विलेज देखने के बाद हम लोग चले गए थे बिग बुद्धा मंदिर देखने के लिए। पटाया का बिग बुद्धा मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और पटाया का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। उस दिन होटल वापस आके हम लोग पटाया के एक लोकल नाइट मार्केट घूमने गए थे। बैंकॉक के तरह पटाया में भी आपको बहुत सारा नाइट मार्केट मिलेगा। पटाया में हम लोग जो नाइट मार्केट गए थे वो बैंकॉक के नाइट मार्केट से बहुत अलग था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग सुबह उठ के चले गए कोरल आइलैंड देखने के लिए। ये कोरल आइलैंड विजिट एक 3 घंटे का शॉर्ट ट्रिप था। यहाँ पे हम लोग सी वॉक किए थे और उसके बाद वापस आके अपना लगेज पैक करके फिर से बस में निकल गए हम लोग बैंकॉक के लिए। पटाया से बैंकॉक का जर्नी सिर्फ 3 घंटे का ही था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगी, पटाया में 2 दिन काफी होता है, पर अगर आप एक दिन रिलैक्स के साथ बिताना चाहते हो तो पटाया में आप 3 दिन रखिएगा। लास्ट डे पे आप सिर्फ बीच को एंजॉय करने के लिए रख सकते हो। 5th डे हम लोग बैंकॉक में ही थे, क्योंकि 4th डे के रात को ही हम लोग बैंकॉक पहुंच गए थे पटाया से बस में। 5th डे हमारा फ्लाइट था बैंकॉक से फुकेट के लिए। हमारा फ्लाइट बहुत अर्ली मॉर्निंग था सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से। हमारा होम स्टे डॉनम्योंग एयरपोर्ट से तो पास था, पर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से काफी दूर था। इसी वजह से हम लोगों को बहुत सुबह उठना पड़ा उस दिन, और सुवर्णभूमि पहुंच के हम लोग फ्लाइट लेके पहुंच गए फुकेट। फुकेट थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है। बोलते हैं ना, पहली नजर में प्यार हो गया। फुकेट शहर के साथ हमारा ऐसा ही हाल हुआ। फुकेट शहर को देखते ही हम लोग पहली नजर में इसके प्यार में पड़ गए। हम लोग एयरपोर्ट से कैब बुक कर लिए और पहुंच गए हमारा होम स्टे। फुकेट में हमारा होम स्टे पैटोंग बीच के पास था। पैटोंग बीच एयरपोर्ट से बहुत दूर है। हम लोगों को एयरपोर्ट से हमारा होम स्टे तक आने में बहुत टाइम लगा, पर ये रास्ता इतना खूबसूरत था, हम लोग इतना दूर ट्रैवल भी कर लिए और हम लोगों को पता भी नहीं चला। उस दिन भी हम लोग फुकेट में एक लोकल थाई रेस्टोरेंट में खाना खा के निकल गए पैटोंग बीच जाने के लिए। उस टाइम फुकेट में बहुत बारिश हो रहा था। लंच कंप्लीट करके हम लोग पैटोंग बीच के तरफ चलने लगे, और पैटोंग बीच के तरफ जाते जाते ही हम लोग एक टूर ऑपरेटर से हमारा नेक्स्ट 3 दिन के लिए टूर बुक कर लिए। एक था फीफी आइलैंड का टूर, एक था जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर और एक था फुकेट सिटी टूर। और उसके बाद हम लोग पैटोंग बीच चले गए और वहाँ पे समुंदर में नहाए और बहुत एंजॉय किए बीच में। और वहीं पे बीच के साइड में एक लोकल थाई स्ट्रीट फूड सेंटर से
थाई लोकल फूड खा के हम लोग वापस हमारे होम स्टे में आ गए। जिस टूर ऑपरेटर से हम लोग ये टूर बुक किए थे वो लोग नेक्स्ट डे यानी कि हमारे थाईलैंड विजिट के 6th डे सुबह ही हमारे लिए कार भेज दिए। कार हम लोगों को और भी बहुत सारे लोगों को पिक करके लेके गए उनके टूरिस्ट ऑपरेटिंग सेंटर में। वहां से शिप में हम लोग चले गए फीफी आइलैंड के साथ और भी बहुत सारा आइलैंड घूमने के लिए। फीफी आइलैंड टूर के दौरान हम लोग घूम के देखे थे माया बे, फीफी डॉन, खाई आइलैंड, फीफी ले, मंकी बीच और काइचॉन आइलैंड। ये ट्रिप बहुत ही खूबसूरत था। मैं रिकमेंड करूंगी आप अगर फुकेट घूमने जाते हो तो ये फीफी आइलैंड का टूर जरूर करिएगा। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरेबल टूर बनने वाला है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर करने के लिए। उस दिन भी सुबह हम लोगों को हमारा टूर ऑपरेटर का कार पिकअप करने आया था और वही टूरिस्ट ऑपरेटिंग सेंटर में लेके गया था। वहां से हम लोग शिप में निकल गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड के साथ और भी बहुत सारे आइलैंड देखने के लिए। उस दिन हम लोग जेम्स बॉन्ड आइलैंड के साथ साथ नाका आइलैंड, पनक आइलैंड, होंग आइलैंड, खाओपिंगकन आइलैंड एंड मुस्लिम विलेज देखे थे। उस दिन हम लोग होंग आइलैंड में कायाकिंग भी किए थे और पनक आइलैंड में लाइमस्टोन केव के अंदर जाके लाइमस्टोन फॉर्मेशन देखे थे। उसी दिन यानी कि हमारे थाईलैंड विजिट के 7th डे में जेम्स बॉन्ड आइलैंड से वापस आने के बाद हम लोग गए थे फुकेट बांग्ला मार्केट देखने के लिए। ये भी बेसिकली फुकेट का एक नाइट मार्केट ही है। इस नाइट मार्केट के अंदर आपको फूड मार्केट भी मिलेगा और यहाँ पे आपको तरह तरह के थाई फूड मिलेगा। हम लोग इस मार्केट को बहुत एंजॉय किए थे। और हाँ, ये फुकेट बांग्ला मार्केट हम लोग खुद टुक टुक बुक करके गए थे। नेक्स्ट डे यानी कि हमारे थाईलैंड विजिट के 8th डे में हम लोग सुबह सुबह निकल गए फुकेट सिटी टूर करने के लिए। और बाकी दिन की तरह भी ये दिन भी हमारी टूर ऑपरेटर हमारे लिए एक गाड़ी भेजे थे। उस दिन हम लोग फुकेट शहर को घूम के देखे थे। फुकेट शहर में उस दिन हम लोग देखे थे करोन व्यू पॉइंट जो पहाड़ के एकदम ऊपर में था। उसके बाद गए थे फुकेट टाइगर पार्क जहाँ पे हम लोग हमारी लाइफ में पहली बार टाइगर को टच किए थे। उसके बाद हम लोग गए थे एलिफेंट पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को एलिफेंट का किस मिला था। उसके बाद हम लोग गए थे फुकेट बिग बुद्धा टेम्पल देखने के लिए जो कि थाईलैंड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। उसके बाद हम लोग घूमे थे चलोंग टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत था और इस टेम्पल के अंदर बहुत सारे बुद्ध मूर्तियां थे। इस टेम्पल से आपको बाहर के फुकेट शहर का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिलेगा। और ऑफिशियली यहाँ पे हमारा टूर एंड होता है। आप अगर चाहते हो इस पॉइंट के बाद निकल के कहीं और जाने के लिए आप जा सकते हो। हम लोग जिस टाइम गए थे उस टाइम पे फुकेट में एक कार्निवल चल रहा था। इसी वजह से हमारी गाड़ी में से भी बहुत सारे टूरिस्ट इस पॉइंट में टूर को एंड करके कार्निवल देखने के लिए चले गए थे। हम लोग इस टूर को कंटिन्यू किए। इसके बाद हम लोग गए थे कैशू नट फैक्ट्री देखने के लिए। यहाँ पे कैसे ये लोग हाथ से कैशू को प्रोसेस करते हैं ये हम लोग देखे थे। यहाँ पे आपको बहुत सारे सामान खरीदने का ऑप्शन भी मिलेगा। आप चाहो तो डिफरेंट फ्लेवर का कैशू खरीद के घर ला सकते हो। उसके बाद हम लोग गए थे फुकेट बिग बी फार्म। यहाँ पे ये लोग हनी को प्रोसेस करना हम लोगों को दिखाए थे। ओरिजिनल हनी कैसे पहचानना है वो भी हम लोगों को दिखाए थे। आप अगर चाहो तो यहाँ से आप हनी खरीद सकते हो। उसके बाद ये लोग हम लोगों को एक सुवेनियर शॉप पे लेके गए थे जहाँ पे हम लोगों को मुफ्त में कॉफी मिला था। उसके बाद हम लोग गए थे फुकेट ओल्ड टाउन। ये बहुत ही खूबसूरत टाउन था। यहाँ पे आपको बहुत सारा सीनो पोर्तुगीज स्टाइल का घर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक मार्केट है। यहाँ से भी आप अगर चाहो तो सामान खरीद सकते हो।
यहाँ पे आपको ज्यादातर पोर्तुगीज स्टाइल का घर देखने को मिलेगा। अभी ये सारा घर दुकानों में कन्वर्ट हो चुका है, पर ये टाउन बेसिकली एक गली है, घूमने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद उस दिन हम लोग घर वापस आ गए और आने के बाद हम लोग और एक बार गए थे फुकेट बांग्ला मार्केट घूमने के लिए। नेक्स्ट डे यानी कि हमारे 9th डे में हमारा फ्लाइट था इंडिया वापस आने के लिए, और 9th डे सुबह हम लोग फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके आ गए हमारा देश इंडिया वापस कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फुकेट से भी बहुत सारे लोग क्रैबी घूमने के लिए भी जाते हैं और क्रैबी में एक दिन स्टे करते हैं, पर हमारे पास टाइम कम था, इसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। फुकेट एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। फुकेट में कम से कम आपको 6 से 7 दिन देना ही चाहिए। हम लोग और एक दिन एक्स्ट्रा दे पाते तो हम लोग एक दिन फुकेट कार्निवल देखने के लिए जा पाते। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप फुकेट में एटलीस्ट एक दिन एक्स्ट्रा रखिएगा। उस एक दिन आप कोई भी प्लान मत रखिएगा, सिर्फ फुकेट सिटी को फील करने के लिए उस दिन को यूज कीजिएगा। या फिर अगर उस टाइम में कार्निवल चलता है तो आप फुकेट कार्निवल भी देखने के लिए जा सकते हो उस एक दिन में। नाउ आई विल शेयर द कॉस्ट ऑफ आवर टूर, पर ये सिर्फ एक रफ आइडिया है। ये कॉस्ट टोटली डिपेंड करता है आप कैसे टूर करते हो। बहुत लग्जरी होने से ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, और आप अगर बहुत सस्ते में करना चाहते हो तो ये कम भी हो सकता है। हम लोग एक मॉडरेट टूर किए थे। आपको प्लान करने के टाइम एक रफ आइडिया मिल जाएगा कॉस्ट का। फाइनली मेरा थाईलैंड ट्रिप वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्दी आपसे मिलूंगी कोई नई जगह पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। थाईलैंड सीरीज का हर एक वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग so that you can get instant notification whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye.